Okay. अभी स्टार्ट Yes, करते sir. हैं. Question number 6 is the diagonal of a rectangular field is 60 meter. एक rectangle की shape में एक field है. This is a field in the shape of rectangle. Its diagonal is given as 60 meter. Diagonal is 60 meter. More than the shorter side. 60 meter more. Shorter side say. Let this is the shorter side, which is x. And diagonal also is 60 meter more than shorter side, x plus 60. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, this is the longer side, will be 30 meter more than shorter side. Then find the sides of the rectangular field. इसकी sides बतानी है हमें क्या क्या होंगी. तो हम मान लेते हैं let shorter side of rectangle B equals to x meter. Let this is the shorter side of the rectangle, which is x meter. Then the longer side, what will be the longer side? बड़ा करना है इसको, एस्केप मारना है ना. Then the longer side what will be the longer side? It is 30 meter more, means x plus 30 meter. And what is the diagonal? Diagonal is given as 60 meter more than the shorter side, x plus 60 meter. Now find the sides of the rectangle. We have to find the sides of the rectangle. We know that in a rectangle, this angle on the vertex of rectangle is 90 degree. It means this is a right angle triangle. So we can use here the Pythagoras theorem. So by using the Pythagoras theorem, we know that hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. Means hypotenuse कितना अपने पास x plus 60. Its square is equals to base square means x plus 30 square and plus perpendicular square means x square. Solving the square, a square means x square plus 60 का square plus 2ab, a square plus b square plus 2 into a into b equals to x plus 30 का square, x square plus 30 square plus 2 into 30 into x और plus x square ये है. This x square will get cancelled with this x square क्योंकि इधर आएगा तो माइनस होगा. यहाँ पे क्या बचेगा 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 16 2 में 2 120x equals to 30 का स्क्वायर 900 2 into 30 60x plus x square. Taking all the terms on the same side, इन सभी टर्म्स को हम कर लेंगे. क्या बन जाएगा x square वहां पे है ऑलरेडी 60x है हमारे पास 900 है. यहां से 120 को लेके जाएंगे माइनस और यहां से 3600 को लेके जाएंगे माइनस इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारे पास 0. सो वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120 माइनस 60x प्लस 900 माइनस 3600 माइनस 2700 equals to 0. Now we can find the solution of this equation by any of the three methods, that is factorization method, completing the square और by quadratic formula. मैं इसको फैक्टराइजेशन से करा रहा हूँ तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी 2700. ठीक है, या तो 2700 के फैक्टर बनाओ बहुत हो जाएंगे. मैं उल्टा मेथड ले रहा हूँ 60 ऐसे दो नंबर लो जिनको माइनस करने पर या माइनस है तो जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 60 आए और उनकी मल्टीप्लाई जो है वो 2700 आए. बाद में करता हूँ.
हम इसके फैक्टर बनाते हैं 60 के ऐसे दो फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 60 यार मल्टीप्लाई 2700 आए, रफली लेते हैं हम। मान लो 100 और 40, 100 और 40 का डिफरेंस कितना होता है 60 होता है ना, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई कितनी आई 4000। हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 2700 चाहिए ना। मैं नीचे आता हूँ वापिस, क्योंकि 4000 मल्टीप्लाई ज्यादा होगी तो हमें कम लेना पड़ेगा। वापिस नीचे आते हैं 90 और 30 लेते हैं, 90 और 30 को सब्ट्रैक्ट करें तो 60 होता है, मल्टीप्लाई क्या होगा 0027 2700, यही आएगा। 90 और 60 इसके फैक्टर x स्क्वायर, एक फैक्टर 90 एंड सेकंड फैक्टर 30 minus 2700. Now we will place the sign plus or minus, which one will have plus, which one minus. आपको बता रखा है हमेशा जो साइन आपके पास x टर्म के साथ होता है, x टर्म के साथ यहाँ माइनस है, वही साइन इन दोनों में से ग्रेटर टर्म के साथ होगा। ग्रेटर टर्म है 90, so it will be minus. सेकंड टर्म का साइन हमें यहाँ से पता चलेगा, सेकंड टर्म का साइन पता चलेगा 2700, यहाँ से माइनस है तो इन दोनों का साइन अपोजिट होगा, ये याद रखो बस। अगर ये माइनस हो तो इन दोनों का साइन अपोजिट होता है, और अगर ये प्लस हो तो इन दोनों का साइन सेम होता है। इसमें माइनस था तो इन दोनों का साइन अपोजिट, मींस ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। बस अब इन दोनों में से कॉमन x कॉमन, x माइनस 90, यहाँ पे प्लस 30 कॉमन, 30 को 30 से डिवाइड किया, x बच गया, और यहाँ 2700 को 30 से किया 90 बचेगा। So we get the two factors x minus 90 and x plus 30 equal to 0. So these are the two factors. दोनों फैक्टर्स को 1 by 1 equals to 0 पुट करो, we will get the value of x. x minus 90 को 0 पुट अप करते हैं, x minus 90 equals to 0 और x plus 30 equal to 0. यहाँ से x की वैल्यू आएगी 90 और यहाँ से x की वैल्यू minus 30. Now obvious है x क्या है साइड ऑफ द रेक्टेंगल, और साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए this will be rejected. x cannot be negative. So smaller side is, what is the smaller side? X, which is 90 meter. What is the longer side? Longer side is x plus 30, means 90 plus 30, it is 120 meter. And what is the diagonal? Diagonal is x plus 60. Diagonal अपने पास कितना है x plus 60 और x is 90, तो 90 plus 60 means 150 meter. तो ये आ जाएगी आपकी तीनों इसके चीजें जो पूछी गई थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट होता है। यू कैन नोट डाउन। इसके बाद अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी करो बेटा, इसको नोट डाउन कर लो। हो गया? कर लिया सभी ने? यस सर। आगे करें कंटिन्यू फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो फिर इसके अंदर सर। यस बेटा। सर आपने 7 क्वेश्चन कल करा दिया था। 7 हो गया था? 9 तक हो गया था। ओके, तो 6 क्वेश्चन नहीं हुआ था, इसका मतलब 6 नहीं हुआ था। 6 मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था कि आप अपने आप करोगे। ओके, 7th क्वेश्चन हो चुका था, 8 भी हो चुका था। यस सर।
ओके, 9th क्वेश्चन करना है अभी हमने। 9th चल रहा था हमारा, 9th था, ऑनगोइंग था, कंटिन्यू था क्वेश्चन 9th। ओके, 9th क्वेश्चन करते हैं। देखो 9th क्वेश्चन है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3/8 आवर्स। 2 वाटर टैप है, दोनों को, 2 नल है, दोनों को जब एक साथ खोलते हैं तो 9 and 3/8 आवर्स में, 9 आवर्स और 3/8 आवर्स में वो कंप्लीटली फिल हो जाता है। अभी कहता है कि इफ द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर कैन टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन। लार्जर डायमीटर यानी कि जो बड़ा नल है वो अकेला खोला जाए, छोटे नल को अलग से अकेला खोला जाए, तो बड़ा नल जो है वो 10 घंटे कम टाइम लेता है, यानी कि बड़ा नल अकेला खोला जाता है तो वो 10 घंटे जल्दी बढ़ता है छोटे नल से। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब अलग अलग से दोनों टैप को कितना टाइम लगेगा, सेपरेटली, अकेला बिगर टैप जो लार्जर टैप है, जो बड़ा नल है, वो कितने टाइम में उसको फिल करेगा और छोटा नल कितने टाइम में फिल करेगा। तो हम दोनों के लिए एज्यूम कर लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप टू फिल द टैंक, लेट टाइम टेकन बाय लार्जर टैप to fill the tank, मान लिया टैंक को पूरा भरने में लार्जर टैप को जो है वो XR टाइम लगता है, that it takes time XR। तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप को कितना टाइम लगेगा। अगर स्मॉलर टैप अकेला खोला जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा, क्या लिखा है, लार्जर टैप को 10 घंटे कम टाइम लगता है, तो स्मॉलर टैप को 10 घंटे ज्यादा लगेगा, यानी कि x + 10 हो जाएगा, x + 10 आवर्स। छोटे वाले टैप को इतना टाइम लगेगा। ठीक है, दोनों टैप को जब एक साथ खोलते हैं तो 9 and 3/8 आवर्स में वो पूरा भर जाता है। तो अभी टोटल टाइम लगता है x आवर में जो बड़े वाला टैप है वो उसको पूरा भर देता है, तो बड़े वाला टैप 1 घंटे में कितना भरेगा। टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना भरेगा। टोटल फिल करने में x आवर का टाइम लगता है, तो 1 आवर में कितना होगा, 1/x। सिमिलरली टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, छोटे टैप को 1 घंटे में कितना फिल कर पाएगा, 1/x + 10। पूरा भरने में x घंटे लगते हैं तो 1 आवर में कितना होगा, 1/x। इसी तरह दूसरे वाले को टैंक पूरा भरने में x + 10 आवर लगता है, इतना टाइम लगता है, तो 1 घंटे में कितना होगा, 1/x + 10। अगर अब इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, टुगेदर टैंक फिल्ड बाय टुगेदर इन 1 आवर। 1 घंटे में अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना होगा, 1 घंटे में बड़े टैप ने इतना भरा, छोटे टैप ने इतना भरा, तो 1 घंटे में दोनों मिलके कितना भरेंगे, प्लस कर देंगे, 1/x + 10। लेकिन क्वेश्चन में क्या देखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा है कि टैंक को जब दोनों नल एक साथ खोलते हैं तो टैंक को पूरा भरने में 9 and 3/8 कितना टाइम लगता है, पूरा भरने में इतना टाइम लगता है, तो 1 आवर में कितना होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 आवर में कितना होगा, रेसिप्रोकल। फुल भरने में जितना टाइम लगता है उसका रेसिप्रोकल होता है 1 आवर में। ठीक है, तो 1 आवर में बिगर का इतना है, 1 आवर में स्मॉलर का इतना है। टोटल टाइम x था तो 1 आवर में इसका रेसिप्रोकल, इसका टोटल टाइम x + 10 था तो 1 आवर में इसका रेसिप्रोकल, और दोनों के 1 आवर का हो गया प्लस। अब टोटल टाइम कितना होगा, 1 आवर में टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 1/x + 1/x + 10, ये किसके इक्वल होगा, 1/9 and 3/8 इसके इक्वल होगा। टोटल टाइम 9 and 3/8 था तो 1 आवर में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा।
और it can be written as 1 upon x plus 1 upon x plus 10 equal to, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 1 upon एलसीएम 8 72 75 upon 8 और रिवर्स करेंगे तो 8 upon 75 आ जाएगा। ये 1 है ना, इसको सोल्व करेंगे तो 75 upon 8 होता है और 1 के डिवाइड में है तो इसको उल्टा कर सकते हैं 8 upon 75 ये बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम इज x into x plus 10, x cancel with x, remaining is x plus 10 plus x plus 10 cancel, remaining is x equal to 8 upon 75. So it is 2x plus 10 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर और x को 10 से करेंगे तो 10x equal to 8 upon 75. Now we can cross multiply them. Cross multiply करते हैं तो क्या बनेगा 75 को 2 से 150x, 75 को 10 से 750, अब 8 को x स्क्वायर से करेंगे तो 8x स्क्वायर और 8 को 10 से करेंगे तो 80x। सारी टर्म एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इज 8x स्क्वायर प्लस 80x, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 150x माइनस और 750 उधर जाके माइनस इक्वल टू में क्या बचेगा 0। वी गॉट 8x स्क्वायर प्लस 80 माइनस 150 माइनस 70, it is 750 equals to 0। कॉमन आता है कॉमन कर लो, अदरवाइज इसमें फैक्टर बना लो। फैक्टर कैसे बनाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 75 100 की 750 की 8 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0 6000, ये बनेगा 6000। ऐसे नंबर लेने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 70 आए और मल्टीप्लाई 6000 हो। अब अगर आप ध्यान से देखो 120 और 50 इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 6000 आएगा और इनका डिफरेंस 70 होगा। तो 120 और 50 इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, टू फैक्टर्स आर 120 एंड 50। 8x स्क्वायर माइनस 120x प्लस 50x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स 128 से डिवाइड होता है 8 कॉमन x कॉमन, यहाँ 8 से डिवाइड किया तो x बचेगा, यहाँ 8 से किया तो 15 बचेगा, प्लस इन दोनों में से 50 कॉमन, यहाँ पे x 750 को 50 से डिवाइड करेंगे 15 इक्वल्स टू 0। नाउ दोनों ब्रैकेट सेम है, x माइनस 15 इनटू 8x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। ऑन सिंप्लीफाइंग इट we got x equal to एक बार 15 आएगा and second time minus 50 upon 8 आएगा। As x was time, so it cannot be negative. Time है तो negative नहीं हो सकता, तो ये चीज हो जाएगी रिजेक्ट। So time taken by larger tap is equals to 15 hours, ये आंसर हो जाएगा। Time taken by larger tap is equals to कितना हो जाएगा 15 hours and time taken by smaller tap is equals to कितना हो जाएगा x plus 10 15 plus 10 यानी कि 25 hours। ये लगेगा दोनों को सेपरेटली अलग अलग, अगर दोनों को सेपरेटली ओपन किया जाता है तो ये टाइम लगता है। यू कैन नोट डाउन इट, जल्दी नोट डाउन करो इसको, फिर इसका अगला क्वेश्चन करते हैं हम।
कर लिया नोट सभी ने? नोट कर लो इसको। उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Note it down. कर लिया बेटा सबने नोट? यस सर। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 को एक बार ध्यान से पढ़ो, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है उसकी स्टेटमेंट को बिल्कुल केयरफुली रीड करना। अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ने में गलती कर देते हो, आप क्वेश्चन में गलती कर जाओगे। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या गिवन है, क्या पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि उसमें क्या सिचुएशन, क्या प्रॉब्लम क्या है। जब तक प्रॉब्लम का सही सही नहीं पता होगा, उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज टू नो द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझो क्या है और उस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है, तभी हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्वेश्चन 10 हमारे पास, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। 120 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए दो ट्रेन चलती है, एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा पहले पहुंचती है, यानी कि उसकी स्पीड ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले। ठीक है, आगे लिखा है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर। एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है पैसेंजर से, तो दोनों ट्रेन की स्पीड क्या है हम मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन is equals to x kilometer per hour, and then the speed of express train is कितनी तरह की 11 किलोमीटर पर आवर मोर, ज्यादा है ना स्पीड, x plus 11। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा दे रखी है। ठीक है, अब डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसमें, डिस्टेंस गिवन, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कितनी गिवन है 132 किलोमीटर। तो हम दोनों का टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि लिखा है कि एक्सप्रेस ट्रेन को जो टाइम लगता है वो 1 घंटा कम है। एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा पहले पहुंचती है, पैसेंजर को 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो हम दोनों का टाइम निकालते हैं। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन का कितना टाइम हुआ, कितना टाइम लेगी वो, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 132 अपॉन स्पीड इज x, दिस इज आवर टाइम। सिमिलरली टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन का कितना टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस 132 अपॉन एक्सप्रेस की स्पीड है x plus 11, ये टाइम होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा पहले पहुंचती है। इसका मतलब एक्सप्रेस ट्रेन को कम टाइम लगता है, जल्दी पहुंचती है तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम है, मींस पैसेंजर ट्रेन का टाइम जो है वो ज्यादा है। इसलिए ग्रेटर में से लेसर को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 आवर, क्योंकि 1 आवर का टाइम लगता है ज्यादा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ग्रेटर टाइम माइनस लेसर टाइम, ग्रेटर टाइम किसका है
जिसकी स्पीड कम होगी उसका टाइम ज्यादा होगा। स्पीड कम, पैसेंजर ट्रेन को 1 घंटा ज्यादा लगता है। पैसेंजर का टाइम 132 अपॉन x माइनस एक्सप्रेस का टाइम 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल्स टू कितना टाइम लगता है 1 आवर, ये हो जाएगा 1। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम दोनों का x इंटू x प्लस 11, x से x कैंसल, बचेगा 132, इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा x प्लस 11 माइनस, यहाँ x प्लस 11 से x प्लस 11 कैंसल आउट, बचेगा x मल्टीप्लाई 132 इज इनटू x, इट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि लिखा है कि पैसेंजर ट्रेन को 1 घंटा ज्यादा लगता है एक्सप्रेस से। पैसेंजर में से एक्सप्रेस को माइनस करेंगे तो 1 घंटे का टाइम बचेगा। वी गॉट 132 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, 132 को 11 से करो कितना हो जाएगा 22, 2 33 एंड 2 35, 3 11 एंड 3 14 माइनस 132x डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई कर लो या इसको उस साइड ले जाते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे x इंटू x प्लस 11, 132x ये प्लस ये माइनस कैंसल आउट, अपने पास क्या बचेगा x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू यहाँ क्या बचेगा 1452, 1452 को उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, सो वी गॉट x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब इसके बनाने में फैक्टर है, तो फैक्टर बनाओ या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला बना लगा देता हूं, चाहो तो फैक्टर बना सकते हो। ओके, वी आर यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a कितना इसमें कंपेयर करके बताओ, a is 1, what is b, b is 11 and c is minus 1452. So according to the quadratic formula, x is minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a, ये quadratic formula है। वैल्यू पुट अप करो सारे, माइनस ऑफ b, b है 11 तो माइनस ऑफ 11 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, b स्क्वायर मींस 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c की वैल्यू माइनस है, माइनस पहले से है प्लस हो जाएगा 1452 एंड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस रूट ऑफ, दोनों को प्लस कर लो, पहले उसको मल्टीप्लाई करो 121 प्लस में 4 की मल्टीप्लाई इससे कितना हो जाएगा 4 into 8, 4 into 5 कितना मिलेगा 8, 4 into 5 20, 0 2 16 and 2 18, 1 4 and 1 5 प्लस 121 कितना हो गया ये 9295। इसका निकाल लोगे रूट, रूट कैसे निकालोगे इसका, ये बन गया आपके पास 5929, रूट कैसे निकालोगे 7 से डिवाइड करो तो 49 बचेगा 1029, 7 का डबल 14 और किस पे जाएगा ये 7 पे करते हैं, 7 7 जा 49, 7 जा 49 बचेगा 4, 7 4 जा 28 and 4 32, 7 and 3 10, ये बनेगा तो 77 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, तो इसका रूट जो है वो आ गया 77। सो this is 5929 upon 2, so we got x is minus 11 plus minus 77 upon 2, x equals to या तो प्लस साइन से सॉल्व करेंगे इसको या फिर x equals to minus 77, माइनस तो रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस और x क्या हमारे पास स्पीड, स्पीड माइनस में हो नहीं सकती, ये तो रिजेक्ट, यहाँ से x आ गया 66 upon 2 means 33, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर
पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो आएगी 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी x + 11 यानी कि 33 + 11 44 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी, नोट कर लो इसको जल्दी से, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी करो, इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट करते हैं। करें इसका नेक्स्ट स्टार्ट। देखो लास्ट क्वेश्चन इसका, इसके बाद ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, दो स्क्वायर्स है हमारे पास। सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468। दो स्क्वायर्स उनके एरिया का सम। मान लेते हैं लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल्स टू x meter and side of smaller sphere is equals to y meter। then first condition क्या लिखी है, इन्होंने लिखा है sum of area of these two spheres।